FRM I'll take tomorrow probably. So you take FRM, SP5 and SA7. And ASET. Hmm. उसके अलावा कभी कभी कुछ कुछ रैंडम, मतलब every day something different. But yes, these are always there. I have taught CM2 also. I have taught CP1 also. I have taught CB1 also, I think. But I think it is nice because आपके concepts revised रहते हैं. Otherwise, you do forget your previous or earlier exams. Definitely. I've taught CA also CA का कुछ things. CA में economics, CA में law. Oh. CA में हाँ. Mainly all this. Yes. चलो. So let's start. I had opened the papers. Let me see if I can just download these. So you have already gone through the paper once? I think question 2 was still okay, but question 1 में तो I was like almost out. From 4th part to 9th part, वो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आया. Okay. चलो. Initially part still I was reading. हाँ 4th part to 9th part है थोड़ा सा challenging, मतलब especially in an exam environment, it can get a little tough to know exactly how to approach such questions. But when you start understanding, then it doesn't look as complicated. So let's read the question. You're an investment consultant having banks, mutual funds, and hedge funds as clients. One of your bank client, XYZ Bank Limited, seeks your help in introducing a new product, which is a monthly recurring deposit. In Bank RD, normally interest is calculated on a quarterly compounding basis, where customer deposits a fixed amount every month, that is by recurring deposit, and receives a lump sum amount on maturity. Generally, banks quote RD rates at X% per annum compounding quarterly, because quarterly compound with the interest, but rate per annum पे quote करते हैं. From the recurring deposit, XYZ intends to provide bank finance to small medium scale companies that are currently struggling to rely on borrowing from capital markets. The banking regulator uses varying interest rates as a tool to control inflation and economic growth, which is basically जैसे इंडिया में RBI रेपो रेट चेंज करता है as a monetary policy tool. For illustration purpose, assuming all deposits are done in time and all months have same duration, your team member has suggested a formula for the maturity value of the recurring deposit. तो एक फॉर्मूला भी आई थिंक है नीचे में टू एक्सप्लेन दिस, सॉरी एक क्वेश्चन भी है नीचे में टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला. दिस इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट. Exact maturity value is calculated in the RD admin system based on actual dates and actual number of days. ये सिर्फ एक approximation है. One of your hedge fund clients, DEF Hedge Fund, seeks your help in assessing a strategy using stock options trading in an order-driven market structure. Option strategy is similar to the following example. ABC Limited is a company that has declared dividend of 20 per share. X dividend date is 30 days from today. X dividend date क्या होता है? Previous dividend rate? नहीं, 30 days from today है तो previous dividend date कैसे हो सकता है? Dividend of 20. So, whenever a company declares a dividend, suppose let's say आज कंपनी में मीटिंग हुआ that we are going to declare let's say 10% का dividend. Okay? ये declare हुआ, ये आज सिर्फ declare हुआ. There is some time period before the share becomes ex dividend.
before it becomes ex dividend. What do we mean by becoming ex dividend? जो भी ex dividend date है उस डेट पे कंपनी के पास जो लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड मिलेगा, नॉट जो इस डेट पे थे। इस डेट पे जो थे उनको नहीं मिलेगा। एक्स डिविडेंड जिस दिन जाएगा उस दिन के लिस्ट पे जो शेयर होल्डर्स है दे विल बी रिसीविंग द डिविडेंड पेमेंट। दिस entire period between the declaration of the dividend and the dividend and the share going ex dividend, इस पीरियड में जो भी शेयर प्राइस होते हैं दैट इज द कम डिविडेंड शेयर प्राइस। व्हाई डू वी से कम डिविडेंड? कम वर्ड यूज करते हैं एंड की तरह, राइट? समथिंग दैट इंक्लूड्स डिविडेंड। तो इस पीरियड में जो भी शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा होता है दैट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड। सो फॉर एग्जांपल इफ द शेयर इज ट्रेडिंग एट 150 एंड जो डिविडेंड था 10% का दैट वाज 10, then this 150 is inclusive of 140 for the share and 10 rupees for the dividend. तो between the declaration and between it going ex dividend जो भी transactions होंगे वो dividend के साथ होंगे। क्यों? जैसे accrued interest का concept होता है कि whenever we are selling a bond between two interest payment और two coupon payment dates, हम लोग dirty price यूज करते हैं या फिर we do the transaction at a price which is the capital value as well as the accrued interest for जो भी period गया है, correct? So this same चीज stocks and equities में dividend के वे से होता है। तो till the ex dividend date कम dividend price quote होता है। जिस दिन ex dividend हो गया उसके अगले दिन 150 का automatic price 140 हो जाएगा, because अब जो भी transactions होंगे they will not care about the dividend. Clear? So ex dividend date is basically the date जिस दिन dividend का impact हट जाएगा, जिस दिन dividend का, अब जरूरी नहीं ex dividend date पे पे हो, पे होगा और भी कुछ दिन बाद, पेमेंट डेट उसके और थोड़े दिन बाद आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये डिलेज होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। सो 30 डेज में एक्स डिविडेंड हो जाएगा और डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुका है 20 पर शेयर का डिविडेंड। करेंटली एबीसी इज ट्रेडिंग एट 790 विच मीन्स 790 में से 20 तो उसका डिविडेंड कॉम्पोनेंट है एंड 770 इज द शेयर का वैल्यू, करेक्ट? So ex dividend rate at the time on the ex date, so that will be 790. एक्स सॉरी वापस मतलब कि जब हमने डिक्लेयर किया then we are declaring it as 20 per share, so that is on the declaration date. हाँ फिर हम gradually we move to the ex dividend date. हाँ and उस पर भी 20 per share ही रहेगा। हाँ डिविडेंड एक बार जो डिक्लेयर हो गया पे वही होगा, बट सिर्फ ये सब डिलेज होता है या ये सब डिफरेंसेस इन टाइम होता है बिकॉज पीछे में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। अब अगर कंपनी डिक्लेयर किया है डिविडेंड तो इट वुड गिव द पब्लिक सम टाइम टू रिएक्ट टू इट्स गुड न्यूज, करेक्ट, एंड प्लस उनको अपने साइड में भी सारा प्रोसेसिंग करना होगा कि किस किस कौन से शेयर होल्डर्स, बिकॉज सिर्फ 2-3 शेयर होल्डर्स तो होते नहीं है, बहुत शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उन लोग कुछ दिन का टाइम रखते हैं सो दैट पीपल हु वांट टू एंजॉय द डिविडेंड और वांट टू बाय सेल द शेयर वो एक एक्स डिविडेंड डेट पे होता है। एंड फिर पेमेंट लेट्स से 30 डेज में एक्स डिविडेंड हो जाएगा, मतलब 30 डेज के बाद basically after 30 days, at the end of 30 days, whoever are the people holding the shares will be the people who will get the dividend in their bank account. 31st डे पे अगर आप बेच दिए तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर 29th डे पे मतलब फ्रॉम टुडे 29th डे पे भी आप खरीद रहे हो तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, बिकॉज 30th डे पे फ्रॉम टुडे यू हैव द शेयर विथ यू। With the company, your name is registered as a shareholder for 30 days from now. And the share price of 790 will remain throughout. हाँ, मतलब it will fluctuate depending on market forces. लेकिन अगर बोल रहे currently trading at 790, this is a कम dividend price because
ऑलरेडी डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, तो मार्केट में पता है सबको कि टुडे इफ समवन इज गोइंग टू सेल देयर शेयर, दे आर ऑल्सो सेलिंग एन इनविजिबल राइट और एन इनविजिबल लॉस ऑफ द 20 पर शेयर, क्योंकि वो 30th डे पे होल्ड नहीं कर पाएंगे ना अब। तो जो 770 पे उन लोग बेचने के लिए रेडी होते, नाउ दे विल चार्ज 790 फॉर इट, बिकॉज दे आर, इवन दो डिविडेंड डिक्लेरेशन के टाइम उनके पास था ये शेयर, बट उन लोग वो राइट टू रिसीव द डिविडेंड आपको दे दे रहे हैं बाय सेलिंग इट, बाय सेलिंग द शेयर। ठीक है, क्लियर? दैट इज द कम डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर नहीं हुआ था तब इट वाज 770 प्रॉब्ली, मतलब अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स इज द सेम। ठीक है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? द स्ट्रैटेजी इज, पहला बात तो चारों यूरोपियन है। पहला है एक शॉर्ट पुट एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 800 जिसका प्रीमियम है 40, सो दिस इज P माइनस। P माइनस में प्रीमियम मिलेगा कि जाएगा? शॉर्ट पुट में पुट मींस that we will be able to sell that particular It product. doesn't matter. प्रीमियम कहाँ से डिसाइड होता है? प्रीमियम डिसाइड होता है whether you are taking a short position or a long position. Does not matter it's a put or a call. पुट और कॉल क्या करते हैं? वो आपका स्ट्राइक प्राइस एंड शेयर प्राइस का रिलेशन पे डिपेंड करेगा। बट प्रीमियम आएगा कि प्रीमियम देना होगा डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर सेलिंग एन ऑप्शन और बाइंग एन ऑप्शन। Whether you sell a put option or a call option, you will always receive the premium. And whether you buy a put option or a call option, you will have to pay the premium. Because you are buying or selling an option. It does not matter whether it's a put or a call. Right? Correct. तो ये वाला में P माइनस है, प्रीमियम आएगा। ठीक है? Then is long European put at strike price of 725, तो इसका प्रीमियम जाएगा। शॉर्ट यूरोपियन कॉल एट 800, प्रीमियम क्या होगा? आएगा कि जाएगा? आएगा क्योंकि शॉर्ट कर रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं। एंड देन लॉन्ग कॉल एट 850 फॉर अ प्रीमियम ऑफ 30 माइनस 30, तो नेट प्रीमियम कितना हुआ? 40। 40 इज द नेट प्रीमियम। ये सब चीज जो है ना, जब एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो ये सब स्मॉल स्मॉल थिंग्स को पहले ही कर लेना चाहिए। मतलब पेंसिल से लेके या फिर साइड में रफ पेपर में, यू शुड जस्ट, और एटलीस्ट यू शुड जस्ट थिंक ऑन दोज लाइंस इमीडिएटली। बिकॉज जब भी आप आगे जाके पे ऑफ, ऑफ कोर्स जब पूरा स्ट्रैटेजी दिया है तो पे ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन 100% होगा, तो पे ऑफ में आपको हमेशा प्रीमियम को अकाउंट करना पड़ेगा। तो यू विल नो कि इस स्ट्रैटेजी का कॉस्ट क्या था। इस स्ट्रैटेजी का कॉस्ट था, इट वाज एक्चुअली एन इनकम ऑफ 40 रुपीज। राइट? ठीक है। वैसे ही अगर नेगेटिव आता तो मतलब कि टू एंटर इनटू द स्ट्रैटेजी वी हैड टू पे अ कॉस्ट, बट इन दिस केस टू एंटर इनटू द स्ट्रैटेजी वी रिसीव द नेट प्रीमियम ऑफ 40। ठीक है। The put option short position expiry is 15 days from today. Short put, ये वाला जो है, this one expires in 15 days. Put option long and both the call options expire in 45 days from today. Now why is this 15 and 45 important? 30 days from today में ex dividend चला जाएगा. Now what is the relation between options and dividends? अगर एक कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन इफ यू बाय, you have the, if you take a long position in a call option, you have the right to buy the stock, right? But you don't own the stock. So in that situation आपके पास क्या है? Suppose यहाँ पे 45 days बाद you can buy the stock in case of a long call option. तो 45 days बाद अगर आप खरीदोगे तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना? यही अगर 15 डेज में खरीद पाते तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल पाता, because our expiration date is 30 days. Exactly. So that would impact the option value.
45 डेज बाद वाले का वैल्यू कम होगा क्योंकि आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो व्हाई विल यू पे एक्स्ट्रा? बट अगर आपको वो डिविडेंड मिलने का पॉसिबिलिटी रहता देन यू वुड बी विलिंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर द ऑप्शन, प्रीमियम आप ज्यादा देते। सिमिलरली पुट ऑप्शन में क्या होता है? अच्छा, ये तो हुआ कॉल का लॉन्ग। कॉल अगर आप शॉर्ट करके रखे हो तो उस केस में क्या होगा? अगेन सेम कि कॉल ऑप्शन का प्राइस तो कम ही होगा, प्रीमियम कम ही होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट पोजीशन पे हो कॉल का तो दैट मीन्स कि यू ऑलरेडी ओन द शेयर विच यू विल हैव टू सेल। हाँ, शॉर्ट कॉल में यू ओन द शेयर विच मीन्स 45 डेज बाद अगर आप उसको सेल करोगे, इसका मतलब है एक्स डिविडेंड डेट पे शेयर आपके पास होगा। तो in the short call position you will be enjoying the dividend, which is obviously coherent with the flip situation. तो क्योंकि आप enjoy कर पा रहे हो वो डिविडेंड को, तो आप ऑब्वियसली कम वैल्यू चार्ज कर सकते हो, और सामने वाला जो लॉन्ग कॉल है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे तो वो भी कम प्राइस देने के लिए तैयार होगा। तो इट्स द सेम थिंग, जस्ट टू डिफरेंट वेज ऑफ सीइंग इट। बॉइल्स डाउन टू वन सिचुएशन कि कॉल ऑप्शन अगर डिविडेंड डेट कॉल ऑप्शन की एक्सपायरी के पहले होता है तो कॉल का प्रीमियम कम होता है, करेक्ट? पुट ऑप्शन में उल्टा होता है। पुट ऑप्शन के केस में क्या है? इफ यू आर इन अ लॉन्ग पोजीशन एंड यू हैव द राइट टू सेल, इट मींस कि लॉन्ग पुट में यू गेट टू एंजॉय द डिविडेंड। तो लॉन्ग पुट क्या होता है? जो खरीदते हैं, खरीदने पुट ऑप्शन खरीदने वाले को बेनिफिट मिल रहा है तो वो ज्यादा रुपया देगा, प्रीमियम ज्यादा होगा। एंड जो शॉर्ट पुट करते हैं उसका क्या होता है? ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू बाय इट एक्सपायरी डेट पे। तो उसका ऑब्लिगेशन है एक्सपायरी डेट पे बाय करने का। तो अगर एक्सपायरी एक्स डिविडेंड डेट के बाद तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एक्स डिविडेंड डेट के बाद ऑब्लिगेशन टू बाय है तो वो कम देगा, लेकिन अगर पहले है तो फिर वो ज्यादा देने के लिए विलिंग होगा। शॉर्ट पुट है ये, तो यू आर सेलिंग द पुट, राइट? तो यहाँ पे देखो, पुट ऑप्शन जो शॉर्ट पोजीशन है उसका एक्सपायरी 15 डेज है, विच मीन्स कि वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू बाय इन 15 डेज। तो ये क्या है हम लोग के लिए? अच्छा चीज है कि गंदा चीज है? 15 डेज में ऑब्लिगेशन टू बाय हो जाएगा तो वील बी एबल टू एंजॉय द डिविडेंड। तो इसके कारण एक्सटेंडेड डेट 30 डेज है, सो 30 से पहले इफ वी हैव द शेयर प्राइस we will get the dividend. Ex dividend date क्रॉस होने के बाद there won't be any dividend that will be paid. सिर्फ ex dividend date पे जिनके पास शेयर होल्डर सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा ना, सिर्फ उनको ही मिलेगा। ठीक है। तो ये हम लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है कि 15 दिन में हम लोग का पुट का जो शॉर्ट ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जा रहा है। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। एंड जो बाकी सब है, पुट ऑप्शन लॉन्ग है 45 डेज फ्रॉम टुडे, उसके लिए क्या है? अच्छा चीज है कि गंदा चीज है? राइट टू सेल है आफ्टर 45 डेज, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग because they will enjoy the dividend. एग्जैक्टली। कॉल ऑप्शन में लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन दोनों 45 डेज में, तो जो राइट टू बाय है मतलब कॉल लॉन्ग कॉल ऑप्शन है उसके लिए लॉस है, एंड जो शॉर्ट कॉल ऑप्शन है उसके लिए बेनिफिट है। ऑब्लिगेशन टू सेल है मतलब उसके पास पड़ा होगा ऑलरेडी शेयर। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ये अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ जो डेटा दिया हुआ है आई एम ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल कि एक एक लाइन का क्या क्या मतलब निकल सकते हैं, राइट? Like these are the things when you look at data, when you look at the question itself, जो मेन बॉडी है उसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। फिर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट या फिर लॉट साइजेस 1100 यूनिट्स, विच मीन्स एक पुट ऑप्शन या एक कोई भी एक ऑप्शन का मतलब सिर्फ एक शेयर नहीं है। लाइक वन ऑप्शन इज नॉट फॉर वन शेयर, वन ऑप्शन इज फॉर 1100 शेयर्स।
दैट इज द लॉट साइज. तो जो भी होगा सब चीज इंटू 1100 हो जाएगा बेसिकली. ठीक है. ठीक है. Includes both for call put both. हाँ, लॉट साइज दोनों का होता है. इट्स एन ऑप्शन थिंग. तो वेदर इट्स अ कॉल और अ पुट, इट डजंट मैटर. ठीक है. All in the money options are settled at expiry by physical delivery of shares. तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली कैश सेटलमेंट नहीं है अगर इन द मनी है. इन द मनी में एक्सरसाइज होता है, आउट ऑफ द मनी कोई ऑप्शन एक्सरसाइज होता नहीं है. करेक्ट. तो फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स से होगा. इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 45 days and any positions held will be closed by 45 days from today. तो वो ठीक है. हम लोग का ऐसे भी सारा ऑप्शंस एक्सपायर हो जा रहे हैं. ठीक है. Now, let's look at the questions. First part बोल रहा है advantages and disadvantages of bank finance compared to borrowing in the capital markets. Pretty straightforward question. कि बैंक फाइनेंस वर्सेस कैपिटल मार्केट बोरोइंग करना है. तो एडवांटेजेस ऑब्वियसली होगा कि बैंक रिलायबल है. बैंक से आप जब बोरो कर रहे हो, बैंक फाइनेंस मतलब बैंक से बोरो करना. क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू आप बैंक से बोरो करो कि आप पब्लिक से कैपिटल मार्केट में बोरो करो, मे बी बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एटसेट्रा. ठीक है. तो एडवांटेजेस क्या है? Relationship between company and bank brings about the stability of finance costs, known depth of access and flexibility to change terms. Then cost of finance can be lowered by companies that use the bank for other services because obviously banks के साथ अगर आप बाकी सर्विसेज भी यूज कर रहे हो सेम ही बैंक का, तो आपको उन लोग इशुएंस कॉस्ट एंड कुछ टर्म्स में थोड़ा सा ईज दे सकते हैं. Advice on finance due to a regular contract with the bank. So you get the bank comes in and as an advisory also. No need for credit rating agency involvement in management time because bank जब आपको loan extend करेगा तो bank will not see your credit rating as such. Banks will do their own analysis. लेकिन अगर आप on the flip side public से उठाते हो रुपया, तो क्या पब्लिक से उठाने में क्या होगा? पब्लिक से उठाने में आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाना होता फॉर इशूइंग बॉन्ड्स, बट बैंक के केस में नहीं जाना होगा. ठीक है. डिसएडवांटेजेस ऑफ बैंक फाइनेंस क्या है? Restrictions imposed by banks can be far more penal than those demanded by capital market investors because bank is obviously a larger institution. It has more power, it has more awareness. Generally, term and size of debt available is significantly shorter and smaller than the capital markets. Relationship between capital market investors is generally more arm's length than banks, freeing up management time. Why? Arm's length का मतलब क्या होता है? Arm's length is basically fair price या fair terms. तो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स को अगर आप बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, देन यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन टॉकिंग टू दोज इन्वेस्टर्स और यू नो बीइंग इन देयर गुड बुक्स एंड मेंटेनिंग अ कंटिन्यूड रिलेशन विद देम बिकॉज फॉर यू दे आर बाकी स्टेक होल्डर्स की तरह, सो एनीवन एल्स कैन मैनेज. बट अगर बैंक है तो बैंक के साथ यूजुअली हायर मैनेजमेंट बैठते हैं टू नेगोशिएट द टर्म्स, तो वहां पे मैनेजमेंट टाइम यूज हो जाते हैं. क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? बस एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाले में आई हैड डाउट. तो बैंक बोरोइंग में वी माइट नॉट नीड, बट बोरोइंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट में हाउ आर वी नीडिंग इट? आपको अपना बॉन्ड को क्रेडिट रेट कराना होगा ना. कोई भी बॉन्ड जब कैपिटल मार्केट में मिलता है तो उनका क्रेडिट रेटिंग होता है. अच्छा, इन दैट सेंस. तो उसके लिए यू विल हैव टू हायर अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू डू द क्रेडिट रेटिंग वर्क फॉर यू. बट बैंक्स अपना खुद का क्रेडिट एनालिसिस करते हैं. दे डोंट नीड एन एक्सटर्नल पार्टी फॉर दैट. ठीक है. Second part is discuss the impact of change in interest rates on the bank's profitability and risks. ये quantitative easing पे बहुत elaborate chapter है. A lot of it comes from there because impact of change in interest rates is similar to the impacts of, मतलब not completely, but हाँ काफी हद तक interest rate पे impact होता है. क्वांटिटेटिव ईजिंग आई थिंक हमारा उसमें था इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में.
क्वांटिटेटिव ईजिंग उसमें था इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस वाले में. ठीक है. द बैंकिंग सेक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी. अच्छा, एकदम सिंपल बात है. इफ आई टेल यू कि forget about finance, forget about everything, एकदम बेसिक डिस्काउंटिंग नॉलेज से अगर इंटरेस्ट रेट्स राइज होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होता है? इंटरेस्ट रेट राइज हुआ तो हमारा लाइबिलिटी कम हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ. मतलब वी नीड टू प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा, बिकॉज़ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा. वी हैव लेस कैपिटल. हाँ. एंड सिमिलरली इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने से रिवर्स उल्टा हो जाएगा. करेक्ट. हाँ, तो ये तो एकदम बेसिक है. तो कभी भी इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट आएगा, दिस इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ योर आंसर. क्योंकि इंटरेस्ट रेट का इन जनरल, दिस इज नॉट फॉर बैंक, दिस इज फॉर एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनका इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट सबसे पहले उनके वैल्यूएशन पे पड़ेगा. करेक्ट. ओके. नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट रेट्स जो है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, किसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा? इन टर्म्स ऑफ, इफ इंटरेस्ट रेट्स आर लेट्स से राइजिंग तो वैल्यूएशन गिरेगा. ठीक है, दिस वी एस्टैब्लिश्ड. किसका वैल्यूएशन ज्यादा गिरेगा? शॉर्टर टर्म लायबिलिटीज या एसेट्स का, या लॉन्गर टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज का? लॉन्गर टर्म. लॉन्गर टर्म बिकॉज हेवियर डिस्काउंटिंग. हाँ. सो दैट इज अगेन अ सेकेंड पॉइंट जो कि हर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन में होगा. इट डज नॉट मैटर कि बैंक है कि कोई और इंस्टीट्यूशन है. ऑलवेज जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बीच का स्प्रेड है या जो गैप है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट रेट घटने से डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. एंड अगर ज्यादा लॉन्गर टर्म लायबिलिटीज है एंड नेगेटिव वे से गया है, मतलब बेसिकली अगर ज्यादा ओवरऑल अगर ज्यादा लॉन्गर टर्म की तरफ है तो फिर द इम्पैक्ट विल बी हायर, एंड अगर शॉर्टर टर्म है तो इम्पैक्ट विल बी लोअर. दैट इज अनदर थिंग. Okay. We're saying in falling interest rates, ना? Falling interest rates, but a longer term duration. कुछ भी होगा. राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स आल्सो लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन में सेम होगा ना. इम्पैक्ट तो ज्यादा ही होगा. इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दिस वी हैव ऑलरेडी सेड इन द फर्स्ट पॉइंट कि इंक्रीज होने से वैल्यूएशन कम्स डाउन एंड इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से वैल्यूएशन गो अप. राइट. अब जो इम्पैक्ट ये हुआ इम्पैक्ट का डायरेक्शन, बट इम्पैक्ट का सिवियरिटी इज डिटरमाइंड बाय द टर्म. करेक्ट. वर्क्स. तो ये एक और हुआ. नाउ इंटरेस्ट रेट और किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को? एक होगा उनका बोरोइंग साइड पे और एक होगा उनका अर्निंग साइड पे. अर्निंग्स में भी जो भी एसेट्स में इन्वेस्टेड है, अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एसेट्स का रिटर्न्स भी लाइकली टू इंक्रीज है. एट द सेम टाइम बोरोइंग साइड में क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लाइकली टू गो अप. करेक्ट. ठीक है. तो ये सब है एकदम बेस लेवल पे कि तुरंत इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट पड़ते ही दीज फ्यू थॉट्स शुड कम इमीडिएटली टू योर माइंड. ओके. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या करें? पहला बात, क्वेश्चन इज फोकसिंग ऑन बैंक. बैंक का इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर इससे कई ज्यादा होता है बिकॉज बैंक्स वर्क ऑन इंटरेस्ट रेट्स. बैंक्स का काम क्या होता है? दे बोरो or they take deposits at X interest rate and then they lend that money at X plus Y interest rate. Correct? Correct. तो interest rates अगर change होंगे तो immediately bank impact हो जाएगा. So let's say banking sector का profitability will increase when interest rates go up. क्यों? क्योंकि उनका interest income बढ़ेगा. हम लोग डिस्कस किए थे वैल्यूएशन. वैल्यूएशन इज डिफरेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज डिफरेंट. वैल्यूएशन हमेशा बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट लाएगा. प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम. तो बैंक्स का इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से. करेक्ट. बेसिकली द रेट जो वो लेंडिंग पे दे रहे हैं, व्हिच वाज आवर वाई रेट, दैट विल इंक्रीज. हाँ.
Institutions in the banking sector have massive cash holdings due to CRR. CRR, you must have done sometime in your life, is the cash reserve ratio, जो कि एक certain amount of the deposits, एक certain proportion of the deposits need to be set aside for meeting any sudden demands of customer balances and business activities. Changes in the interest rate directly affect the yield on this cash and directly alter earnings. Higher interest rates tend to reflect a period of greater economic growth. तो greater economic growth का मतलब क्या है कि banking regulator raising rates to slow expansion. In these conditions, consumer and business demands for loans spike, which also augments the earnings for banks. The spread between long-term and short-term rates also expands during interest rate hikes because long-term rates tend to rise faster than the short-term rates. और banks के साथ क्या होता है, उन लोग का ये long-term and short-term वाला thing बहुत common है because usually their deposits tend to be relatively more short-term. Profitability increases as longer-term loans earn more interest than shorter-term interest cost on deposits. Like I just said, कि deposits usually shorter-term होते हैं, तो उन पे जो interest rate का impact होगा, interest rate rise का, उससे कई ज्यादा impact longer term पे होगा, जो कि उनका loan side है, which is their asset side या income side. ठीक है? If interest rates rise too high, it can start to hurt bank profits as demand from borrowers for new loans suffer. क्योंकि again हमेशा डिस्कस में आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों बोला, तो अभी तक पॉजिटिव्स बोले कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे राइज होगा, बट बहुत ज्यादा राइज इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ जाते हैं, then people might not be wanting to take loans because obviously cost of borrowing becomes too high for them. Refinancing drops and increases deposit competition. Depositors may seek other banks providing higher returns, putting pressure on the funding cost. To attract and retain customer deposits, banks must be able to offer competitive deposit rates. क्योंकि क्या है, बैंक्स के केस में सिर्फ इनकम नहीं अफेक्ट होगा, एक्सपेंस भी अफेक्ट होगा, बट बैंक्स ट्राई कर सकते हैं कि उस आउटगो को कंट्रोल रखें, बट अगेन दे विल हैव टू बी competitive. To manage the impact of rising interest rates on loan demand and cost of funding, banks must be able to adjust their strategies on lending and deposit policies. Banks that rely heavily on lending for revenue can diversify into other areas. Banks should maintain enough liquidity to deal with any changes in the deposit levels. Banks can differentiate themselves from competitors by offering innovative products and services like high yield savings account, mobile banking apps, etc. ये दोनों पैराग्राफ very less likely to come in your head during exams, but हाँ, हमेशा इससे यही समझ आते कि ट्राई कि आप मेन पॉइंट्स लिख दो और फिर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का भी बात लिखो ऑन जस्ट एक्सपैंडिंग द आंसर. ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीटली अनरिलेटेड यू राइट समथिंग, बट थोड़ा बहुत रिलेशन भी हो तो बात की तरफ में यू कैन कीप दोज पॉइंट्स. Banks also have large amounts of bonds in their portfolios. Now they have come to the balance sheet side. Bond prices typically fall when interest rates rise. To avoid significant losses or uncertainty, banks must manage their bond portfolios effectively. Interest rate risk is the risk to a bank's earnings and capital that occurs when interest rates change. It arises primarily because the rates and prices of assets and liability change by different amounts or at different times. Mainly 4 types of risk. अभी तक हम लोग profitability किए, now we have come to the risks. पहला है repricing risk. Occurs when assets like loans or investments mature or reprice at different times than the liabilities. क्योंकि क्या हो रहा है, why repricing risk? Let's say आपका asset या loan है, उसका you have to reprice it. Reprice का मतलब क्या है, you have to revise the interest rates. Basis risk arises when interest rate changes lead to a difference in how a bank's assets are repriced versus its liabilities. Basis हमेशा क्या होता है, दो चीज के बीच का डिफरेंस होता है. Yield curve risk arises from non-parallel changes in the yield curve. Rate change on a 2-year government bond, for example, may differ from that on a 10-year government bond. And
जैसे कि ऊपर मेंशन था, बैंक्स के पास very 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 big portfolio of bonds. Option risk arises when the timing or amount of a bank's cash flow changes because of a decision by a customer on interest rate change. For example, refinancing. ऑप्शन रिस्क में एग्जाम्पल है refinancing, कि हो सकता है कि the customer decides to refinance अगर interest rates गिर गए. For many banks, repricing risk is of the most concern. They must regularly monitor the mix of fixed rate and floating rate assets and liabilities, as well as when those assets and liabilities mature or reprice and to what magnitude. Because fixed rate में repricing risk नहीं होगा, floating rate में repricing होगा. Fixed rate वालों को तो जो भी initial level पे fix हुआ था वो होगा, and if it is subject to change later on, then वो तब देखना होगा कि क्या टाइम पीरियड पे subjected to change or revision. Any doubts still here? जब हम रीफाइनेंसिंग की बात करें सकते तो दैट वाज जस्ट कि अगर we want to mature the FD early or maybe renew the FD, basically something like that. Something like that, yes. ठीक है, मतलब basically a customer is changing their decision based on your interest rate. ठीक है. Discuss the issues to be considered in product design and pricing or repricing of the recurring deposits. तो फिर we've come to the beginning part कि नया प्रोडक्ट निकालना है XYZ को recurring deposits का, तो उस प्रोडक्ट के डिजाइन में, प्राइसिंग में क्या क्या फैक्टर्स या इश्यूज को कंसिडर करने, राइट? तो दिस अगेन a lot of it stems from your CP1 knowledge. जब हम लोग प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते थे वहां पे जो भी पॉइंट्स यूज होते थे उनको तो डेफिनेटली यूज करना ही है, प्लस यू गिव सम मोर पॉइंट्स that are specific to the product and to the industry, which is the banking industry. ठीक है? So in recurring deposit, customer has to first choose the tenure, monthly deposit amount. Once investment starts, customer must deposit the amount every month over the tenure. RD interest rates are applied based on the tenure and deposit amount. तो ये क्या हुआ? This is the very basic कि ये प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट का इनपुट्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एफडी डिजाइन करना है तो आप एफडी प्रोडक्ट का सबसे पहले डिसाइड करोगे कि हम लोग क्या टेन्योर कर रहे हैं एंड किस अमाउंट का एफडी देख रहे हैं, उस हिसाब से प्राइसिंग करेंगे उसका. जैसे लाइफ इंश्योरेंस में देखते हैं क्या टर्म है एंड क्या सम अश्योर्ड है. सिमिलरली generally the tenure varies from a minimum of 6 months and thereafter an addition of 3 months to a maximum tenure of up to 10 years, and senior citizens are offered a higher rate of interest. This point comes from your general knowledge. By chance कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जिसके बारे में नहीं भी हो नॉलेज, तो you can always give an estimate. You can just give an example. If for example they can keep a minimum and then they can keep थोड़ा intervals पे. Product design includes preparing RD terms and conditions which must cover the procedure to be followed under various scenarios like discontinuance, premature withdrawal, revival or renewal of discontinued RDs, any loan facility against RDs, any TDS applicable, etc. RD opening form should specify minimum amount to be deposited and for higher deposits as multiples of some whole amounts. Lock-in period during which no interest is given on PMW, मतलब premature withdrawal पे. Again, a lot of it depends on your overall awareness about the industry, कि आप कितना सोच सकते हो, and all of this cannot be learned. It has to be, मतलब वो usually आपके experience के साथ आते हैं. Like you just see different products, you read about different stuff, उससे automatically you pick on these stuff. KYC documents required, mode of monthly payments like ECS or online banking or fund transfer. RD administration systems must be able to cope with the complexity of designs. System must exist to pay premature withdrawal or maturity amount and record a lot of information about each RD account, such as dates of the deposits, corresponding amount, any discontinuance periods and revivals, RD rates applicable based on the RD term structure at the inception of RD account.
Expense loadings must cover administration costs involved, how to load expenses, whether overhead or marginal, explicitly like initial documentation, setup of RD, etc., and regular maintenance, like implicitly in the margin built in the pricing of RD rates term structure. तो ये क्या है, प्राइसिंग में भी हम लोग करते थे, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन में भी हम लोग करते थे कि हाउ विल यू टेक अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस. ईदर यू डू इट explicitly कि you say that this is the cost of initial documentation and आप first deposit से में भी काट लो, या फिर आप जो रेट्स ऑफर कर रहे हो उनको थोड़ा कम कर दो, because obviously expense loading in this case will be by reduction of rates. जैसे इंश्योरेंस में expense loading is by increasing the premium, यहाँ पे you are paying interest तो you can reduce the rates. Loading of profit margin implicitly in the margin built in pricing the RD rates term structure. Profitability will be impacted if actual expenses overshoot expenses loaded in the pricing of the RD. RD rates quoted should be marketable or attractive. Addition of innovative options and guarantees in design features may make RD accounts more attractive. Structure and level of RD rates should be competitive, not depart too far from competitors. Since market is very price sensitive, banks might set expense loading for certain products that are only slightly greater than that required to cover the marginal costs, thereby making an apparently insufficient contribution to the fixed overheads. Which means कि अगर हम लोग को बहुत competitive रखने का मन है प्रोडक्ट को, तो हम लोग खाली उनका उस प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट ही एक बार के लिए कंसिडर करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग बाकी प्रोडक्ट्स के थ्रू रिकूप करेंगे. This is then justified because there is still some contribution to expense overheads as opposed to zero contribution. What really matters to the bank is the total contribution that results from selling the product as a whole, not per single account. This total contribution can be represented broadly by per account contribution into number of accounts. Per account contribution is the profit from a single account net of marginal costs. The bank's total profit can then be thought of as total contribution from all accounts minus the overheads. We need to find the level of expense loading that will maximize total contribution. In a very competitive market, this is achieved only by having very low per account margins, thereby ensuring sales. With less competition, higher per account margins will be possible. Level of risk that may be acceptable depends on bank's ability or willingness. Key risk is the interest rate risk. Other risks include expense overrun and uncertain behavior of customers like volatile premature withdrawal and discontinuance. The interest rate risk can be reduced by making RD rates reviewable periodically, say after every 2 or 3 years, which is not guaranteeing the RD rates for the entire term. Bank may consider using swaps or swaptions to mitigate the interest rate risk. Alternatively, they could allow cross subsidies across old and new RD accounts while repricing. बहुत सारा पॉइंट्स लिखे, एकदम इतना पॉइंट्स लिखने का नीड नहीं होता है. 10 मार्क्स के लिए आप 20 पॉइंट्स लिखो, इट्स मोर देन इनफ. Okay. हाँ, मतलब they have What we do in other exams. yes, they have just filled on page after page ऐसे लग रहे हैं. I only got tired read करते करते. I also got scared while I was हाँ going. नहीं, इतना पॉइंट्स नहीं लगता बिकॉज ऑब्वियसली आई इनफैक्ट दोनों ही IFOA का भी, IFOA में ये रहता है कि दे गिव पर पॉइंट का मार्क्स ऑल्सो साइड में, तो यू नो कि यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ इट, बट इट्स द सेम फॉर IAI ऑल्सो, दे जस्ट डोंट गिव पर पॉइंट मार्क्स. बट हाँ ये है कि मैक्सिमम 10 है, नीचे में वो उन लोग लिख देते हैं मैक्स 10, बट इतना पॉइंट्स नहीं लिखना है. एंड अगेन सेम थिंग, जरूरी नहीं कि ये सेम एग्जैक्ट पॉइंट्स हो. In this area broadly, the points should be there. And Let me in just read. it was a discussed question, so you write both. Yes, yes. Okay. I'll just read it quickly. कि by chance कोई point I want to explain. Premature withdrawal पे of course they have focused a lot क्योंकि
That is a very big risk for all these kinds of longer term commitments. Regulatory requirements, again 1 point जो easy marks है. And one thing जो हर आंसर में you can always write, and ये भी compromise between factors. नेक्स्ट बात देखते हैं. फॉर्मूला फॉर मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी सजेस्टेड बाय योर टीम मेंबर. तो ये जो है फॉर्मूला, उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि क्या है. तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो भी वेरिएबल्स यूज है, यू कैन सी क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं है, तो फर्स्ट यू एक्सप्लेन दोस. तो m इज द मैच्योरिटी वैल्यू, r इज द मंथली डिपॉजिट, i इज द इंटरेस्ट रेट, ऊपर जो दिया हुआ है x% पर एनम, वैसे ही n इज द term of the RD contract expressed as number of quarters. At that they've just shown the derivation. And they've just used the derivation for accumulated value in 3n. 3n because quarters में, तो इंटरेस्ट जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स पे होते हैं. accumulated value of annuity due factor. annuity due क्यों है? क्योंकि आप डे 0 पे पहला इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, तो इसलिए annuity due है. for term of 3n months, because as I said n क्या है, number of quarters होता है, क्योंकि quarterly interest compound हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे n used है. पर हम लोग को 3n लेना होगा अपने एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि मंथली बेसिकली वो हो रहा है. Interest rate is equal to 1 plus I to the power 1 by 3 minus 1 per month. Effective monthly rate. Your accumulated value, na? Yeah. S is just your accumulated value. Na? S stands for the accumulated value. And due because we are paying First deposit times 0 पे आ जाएगा ना, ठीक है, तो इसलिए annuity due है. And then they've just explained the formula. Yeah. Any doubt in this? नहीं ठीक है. Yeah. इसके अंदर how do we write this in that उसमें आई वाले पोर्टल पर? I think S due N तो नहीं बन सकता है. S ड्यू नहीं बनेगा तो S ब्रैकेट में ड्यू लिख दो. ठीक है. वही कर मैथमेटिक्स. अच्छा ठीक है. If you just write N, वो भी ठीक है, नहीं तो बॉक्स ब्रैकेट. ठीक है. बॉक्स ब्रैकेट यूज कर लो, बेस्ट है. Part 5 is deriving a formula for the maturity value of the RD. ये तो recommended था, अब हम लोग को खुद से derive करना है एक formula. तो उसके लिए we start from the very beginning. Formula for maturity can be calculated as the product of monthly deposits and accumulated value. Same thing जो ऊपर की है. However, calculation of accumulated value of annuity due factor is not straightforward, since installments are deposited on a monthly basis and compounding occurs on a quarterly basis, which means कि month 1 का, month 2 का and month 3 का compounding quarterly होगा, but deposit एक एक month पे हुआ है, right?
Right. तो वो चीज को वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट इन दिस पार्ट. In bank accounts, compounding happens through capitalization of interest at quarterly rests. That is compounding at the calendar quarter ends, and within a current quarter, interest is accrued on a simple interest basis, which means कि ये वाला जो है इस पे simple interest लगेगा, इस पे simple interest लगेगा, और rather ये भी नहीं होगा, it will be 1, 2 and 3, और यहाँ पे कंपाउंडिंग होगा, यहाँ पे 3 मंथ्स कंप्लीट होगा क्योंकि ये तो टाइम 0 है. तो ये यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट, ये यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट, ये यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट, और फिर जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होगा दैट विल गेट कंपाउंडेड ओवर टाइम. ओके. So for simplification, we can assume compounding an RD account quarterly instead of current quarterly. कहने का मतलब we will assume ये भी 3 मंथ, फिर ये भी 3 मंथ, ये भी 3 मंथ. To tackle this, we accumulate the monthly deposits within an RD account quarter up to RD account quarter end using simple interest basis and generate a new set of quarterly cash flows that can be accumulated using accumulated value of annuity arrear factor. Monthly interest rate क्या होगा? I/3, क्योंकि I is quarter का, तो month का divide by 3. Accumulated monthly unit deposits in a quarter is given by 1 plus 3I/3, 1 plus 2I/3 and 1 plus I/3. ये जो अभी ऊपर दिखाया था कि फर्स्ट वाला पे 3 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड वाला पे 2 मंथ्स का एंड थर्ड वाला पे 1 मंथ का. तो इसीलिए ये 1 जो है, दिस वन इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट. I/3 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, तो 3 मंथ्स का क्या आएगा? 3I/3 सिंपल इंटरेस्ट पे. इसलिए उसका 3I/3. सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट पे 1 मंथ का इंटरेस्ट. सब मिला के क्वार्टर के एंड में कितना अमाउंट कलेक्ट हो गया? 3 plus 2I. हाँ, where I is the effective quarterly interest rate. ये हम लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं. तो कहने का मतलब क्या है? क्वार्टर, हर क्वार्टर जब कंपाउंडिंग होगा तब हम लोग 3 plus 2I नया इकट्ठा कर लेंगे. मतलब वी कैन अज्यूम कि हम लोग को जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिल रहे हैं, 3 मंथली इंस्टॉलमेंट अलोंग विथ द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन देम ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट बेसिस इज बीइंग पेड क्वार्टरली. क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर क्वार्टर, दिस इज टाइम 0, टाइम 1, 2, 3, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर हुआ, टाइम 4, 5 एंड 6, यहाँ सेकेंड क्वार्टर हुआ. हाँ, एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में यहाँ पे 1 पे हो रहा है, यहाँ पे 1 पे हो रहा है, यहाँ पे 1 पे हो रहा है. इस पे 3I+3 का इंटरेस्ट लग रहा है, इस पे 2I/3 का और इस पे I/3 का, है ना? और उस पे इंटरेस्ट कंपाउंड कब होगा? उस पे इंटरेस्ट कंपाउंडिंग विल स्टार्ट एट टाइम 3. तो इंस्टेड कैन वी से कि ये टोटल का जो सम हुआ विच वाज 3 plus 2I, कैन वी से कि हम लोगों ने 3 plus 2I टाइम 3 पे इन्वेस्ट किया, फिर 3 plus 2I टाइम 6 पे फ्रेश इन्वेस्ट किया, और फिर ये तो कंपाउंड होते रहेगा अपना. कैन वी से इट लाइक दैट? 3 plus 2I was जब हमारा पूरा एक क्वार्टर हो गया. हाँ, एक क्वार्टर में हम लोग ऐसे सोचो कि आप रुपया आपको मंथली देना था आरडी में, आप आरडी में नहीं डाले, आप एक और जगह डाले जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था आपको. ठीक है, तो आप फर्स्ट मंथ डाले, सेकेंड मंथ डाले, थर्ड मंथ डाले, तीनों महीना का आपका इंस्टॉलमेंट प्लस उस पे अक्रूड इंटरेस्ट मिला के आप क्वार्टर के एंड में जाके उनसे वापस ले लिए और फिर जाके आरडी में हर क्वार्टर डाल दिए, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड होगा. तो कैन बी कंसिडर इट एज अ क्वार्टरली इंटरवल में आप एक रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो जो कि पूरा कंपाउंड हो रहा है. नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होते हैं.
एक क्वार्टर में 3+2i कलेक्ट होगा, ये तो समझ आया। एंड हाँ, एक क्वार्टर में 3+2i हमने लिया था कि फर्स्ट मंथ में 3 मंथ। फर्स्ट मंथ वाले को 3 महीना का सिंपल इंटरेस्ट 3i/3, हाँ, सेकेंड मंथ वाले को 2i/3, तो 3+2i कलेक्ट हो गया एक क्वार्टर के एंड में। अब वो आपका टिल द एंड ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट एवरी क्वार्टर कंपाउंड होते रहेगा। हाँ, सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप 3+2i कलेक्ट कर लिए, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कंपाउंडिंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड क्वार्टर। करेक्ट। तो 3+2i we have 4 times basically by the end of year. हाँ, एग्जैक्टली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालते हैं तो वी सी कि क्या अमाउंट है जो हर क्वार्टर जा रहा है एंड दैट इज बीइंग कंपाउंडेड। तो हर क्वार्टर समझ लो 3+2i जा रहे हैं, आया समझ में। इसमें जो n हुआ दैट इज बेसिकली योर क्वार्टर। हाँ, n इज द क्वार्टर, ऊपर भी n क्वार्टर ही था। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग तो क्वार्टरली है तो n तो हम लोग को क्वार्टर में लेना होगा। क्लियर ना। हाँ, सो बेसिकली i इंटरेस्ट हमारा 3+2i हो गया एंड n इज जस्ट योर क्वार्टर। Part 6. Explain whether the formula suggested by a team member or the formula derived by you will give higher maturity value for RD. Simple interest used in the derived formula within compounding period always gives higher accumulated value than using the effective rate accumulation. फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू दे हैव शोन कि लेट quoted RD rate be 12% per annum, तो इफेक्टिव क्वार्टरली रेट 3% हो गया। accumulated monthly unit deposits which is 3+2i जो हम लोग किए थे वो हो गया 3.06। अब accumulated monthly unit deposits in a quarter using effective interest rate is this much, जो कि हम लोग किए हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। इस फॉर्मूला को यूज करके 3.059 एक ही क्वार्टर का देखें कि एक क्वार्टर का आरडी था लेट्स से, तो एक क्वार्टर का आरडी के हिसाब से ये आया हम लोग का फॉर्मूला से और ये आया उसके फॉर्मूला से, तो हम लोग का फॉर्मूला से स्लाइटली हायर आया। ठीक है, ठीक है। देन पार्ट 7 नोट ऑन ऑर्डर ड्रिवन मार्केट स्ट्रक्चर, ये आई एम नॉट डिस्कसिंग प्लीज, ये एकदम कट कॉपी पेस्ट है बुक से। ठीक है, ठीक है, लेकिन इट्स एकदम ये सारा का सारा पूरा बुक से उठाया हुआ है। बट मैं एकदम से आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हिच वन। आई थिंक ये एसेट मार्केट था शायद। नहीं, पैसिव मार्केट नहीं, ये तो इनिशियल फ्यू चैप्टर्स में ही है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे I just go through the summary and then see कि this topic was covered where, so that I know इस chapter से है ना। Yes. ठीक है। Then coming to the real deal, part 8 and 9 जो कि है डेरिवेटिव पे। Prepare a report on DEF's option strategy. Consider all possible future scenarios and include statements or comments on the following. पहला है level or range of the share price where strategy is profitable or loss making or break even. Consider all the break even points. Strategy का maximum profit and maximum loss. Initial capital margin requirement, this we've already done. Views of a person implementing the strategy on ABC share price movements in coming 45 days. जब हम लोग ये फर्स्ट 2 पार्ट्स करेंगे उससे हम लोग को उसका व्यू पता चल जाएगा, क्योंकि कैसे डिसाइड होता है जो भी आपका प्रॉफिट मेकिंग रीजन है, इस अगर कोई स्ट्रैटेजी में घुस रहे देन उसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग रीजन जो है शेयर प्राइस वहां पे लाई करने वाले है एंड जो लॉस मेकिंग रीजन है वहां पे लाई करने का चांसेस कम है, तो उस हिसाब से सीधा व्यूज लिखा जाता है। ओके, एंड जो नेक्स्ट पार्ट है प्लॉटिंग अ रफ डायग्राम, दैट विल आल्सो फॉलो फ्रॉम दिस ओनली जब आप कैलकुलेशंस कर लोगे। अब देखते हैं कि कैलकुलेशंस करना कैसे। erasing what this part. स्ट्रैटेजी में क्या क्या है, स्ट्रैटेजी में एक P- है,
at 800, एक P प्लस है at 725, एक C माइनस है at 800 और एक C प्लस है at 850, right? Now, let S be the settlement price at the end of 45 days, क्योंकि obviously सारा options में पे ऑफ डिसाइड करने के लिए हम लोग को उसको सेटलमेंट प्राइस या उस दिन का जो शेयर प्राइस है उससे रिलेट करना होता है. हाँ, अब हम लोग के पास इफ आई सी एक एक्सिस पे 725 पे हो रहा है कुछ कुछ, फिर उसके बाद 800 पे हो रहा है कुछ कुछ एंड 850 पे हो रहा है कुछ कुछ, राइट? दीज आर द पॉइंट्स जहां पे चेंजेस विल हैपन, है ना? Correct. मतलब these are the places where we can sell or buy. हाँ, these are the cases where decisions will have to be made. These are the price points. इसके ऊपर गया तो कोई डिसीजन अलग होगा और इसके नीचे हुआ तो डिसीजन अलग होगा. ठीक है? अब एक चीज हम लोग को कंसिडर करना है, बाकी तीन का तो हम लोग साथ में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक जो 15 डेज में एक्सपायर हो रहा है, एक जो ये क्या हुआ, जो 15 डेज में एक्सपायर होने वाला है, 15 days was put option short. पुट ऑप्शन शॉर्ट विच इज दिस वन, 800. ये 15 डेज में एक्सपायर हो जाएगा. तो अब इस केस में दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं. अगर 800 के ऊपर हुआ 15 डेज बाद प्राइस और अगर 800 के नीचे हुआ, है ना? करेक्ट. 800 के नीचे होने से P माइनस क्या होगा? P एक बार जल्दी से पहले रिवाइज कर लेते हैं ग्राफ्स. C प्लस, C माइनस, P प्लस, P माइनस. तो P माइनस है, स्ट्राइक प्राइस के नीचे अगर है तो एक्सरसाइज होगा, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होने से एक्सरसाइज नहीं होगा. तो अगर 800 से कम है विच इज केस 1 ओवर हियर, तो पुट इज एक्सरसाइज. हम लोग को प्रीमियम तो मिल ही चुका है 40 का और शेयर्स 800 पे है, डिविडेंड है 20 पर शेयर का. क्यों? क्योंकि 15 डेज में P माइनस है विच मीन्स ऑब्लिगेशन टू बाय, यस और नो? P माइनस है तो ऑब्लिगेशन टू बाय, इसलिए ये प्लस प्लस साइन मैंने यहाँ पे दिया था. तो हम लोग को वो 20 का डिविडेंड भी मिल जाएगा इस पुट ऑप्शन के एक्सरसाइज होने से. 40 का प्रीमियम मिला, 20 का डिविडेंड मिला और प्राइस डिफरेंस मिलेगा. प्राइस डिफरेंस क्या है? S माइनस 800 was net premium जो हमारा बन रहा. नहीं, अच्छा, कौन सा है? this particular 40 इज जस्ट फॉर दिस पुट. अभी हम लोग सिर्फ एक पुट को कंसिडर कर रहे हैं, बाकी को नहीं कर रहे. ठीक है? तो इस पुट से 40 का प्रीमियम मिल गया, 20 का डिविडेंड भी मिल गया क्योंकि एक्सरसाइज हो गया, और जो ये S माइनस 800 है ये नेगेटिव होगा. दिस इज एक्चुअली द लॉस जो हम लोग यहाँ डायग्राम में दिखा रहे हैं. जो भी डिफरेंस होगा S माइनस 800 होगा, वो इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव फिगर. बट जस्ट फाइंड आउट इसमें हमें डिविडेंड कैसे मिला? ये तो हमारा 15 डेज में एक्सपायर हो गया ना. सो आई हैव नॉट 15 डेज में एक्सपायर हुआ और एक्सरसाइज हो गया, है ना? शॉर्ट पुट था, मतलब ऑब्लिगेशन टू बाय था. अच्छा, सो आई हैव तो 15 दिन में बाय कर लिया हम लोग, करना पड़ा हम लोग को 15 दिन में बाय, है ना? तो इसीलिए डिविडेंड मिल गया 30 डेज पे. ठीक है. ठीक है, तो ये हुआ केस 1. केस 2 में क्या होगा? पुट एक्सपायर हो जाएगा, खाली 40 का प्रीमियम मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिल पाएगा बिकॉज वी कुड नॉट बाय एंड कोई प्राइस डिफरेंस भी एक्सचेंज नहीं होगा बिकॉज ऑप्शन विल लैप्स. तो हो गया दोनों सिचुएशंस. हाँ, अब नाउ लेट्स कम टू द अदर 3 ऑप्शंस.
अदर 3 ऑप्शंस में क्या होगा, अदर 3 ऑप्शन में एक P प्लस है, विच मीन्स, और किस पे, 725 पे। तो 725 के नीचे अगर होगा तो हम लोग को मिलेगा, 725 के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर एक C माइनस है एट 800। C माइनस क्या है, दूसरा कलर से आई विल ड्रॉ, ब्लू से ड्रॉ करते हैं। C माइनस में क्या होगा, 800 तक तो कुछ भी नहीं होगा, 800 तक कुछ नहीं होगा, 800 के बाद नीचे गिरेगा। एंड लास्टली C प्लस एट 850, C प्लस एट 850 में 850 तक कुछ नहीं होगा, 850 के बाद ऊपर जाएगा। यस, तो इफ आई वांट टू कंबाइन दीज 3 तो क्या होगा, 725 के नीचे सिर्फ वो पुट ऑप्शन काम करेगा, है ना, बहुत ज्यादा डार्क हो गया। 725 के नीचे सिर्फ पुट ऑप्शन काम करेगा। दैट वाज P प्लस। P प्लस वाला, P माइनस वाला तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 725 से 800 के बीच में कुछ काम नहीं कर रहे, है ना। 725 से 800 के बीच में ना ही हम लोग का P प्लस एक्सरसाइज होगा, ना ही C माइनस एक्सरसाइज होगा, ना ही C प्लस एक्सरसाइज होगा, राइट। तो ये होगा 800 टच करते ही क्या होगा, ये C माइनस एट 800 काम करना शुरू करेगा और नीचे गिरेगा। 850 तक वो गिर पाएगा, फिर क्या होगा, C प्लस एक्सरसाइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो गिर रहा था, गिरते गिरते इसको उठा देगा तो मतलब फ्लैट हो गया। कुछ फॉल हो रहा था उस पे हम लोग एक इंक्रीजिंग भी डाल दिया, तो क्या होगा, नलिफाई हो जाएगा ना, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। लास्ट वाले में इंक्रीज ना, सो वी आर सेइंग कि वो जो डिक्रीज हो रहा था, ऐसे डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, और ये डिक्रीज होते जाता, पर यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग एक इंक्रीजिंग एलिमेंट डाल दिए, तो जो डिक्रीज हो रहा था उसको, वो इंक्रीजिंग एलिमेंट इसको सेट ऑफ कर दिया, ठीक है, तो इसलिए वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा था वैसे वैसे इंक्रीज करते जा रहे थे हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो ये ब्लैक लाइन बन गया ये 3 ऑप्शन का मिला के, करेक्ट। करेक्ट। अब इसको अगर हम लोग न्यूमेरिकली लिखें, ये तो ग्राफिकली हो गया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। न्यूमेरिकली P प्लस का पे ऑफ क्या होता है, P प्लस इज ऑलवेज मैक्स ऑफ 0 एंड K माइनस एस टी। C माइनस का होता है मैक्स ऑफ, इनफैक्ट माइनस मैक्स ऑफ 0 एस टी माइनस के। कॉल का हमेशा होता है मैक्स 0 कॉमा एस टी माइनस के for any call option. For any put option, it is max of 0, K minus ST. Why so? क्योंकि कॉल्स कब एक्सरसाइज होते हैं, जब शेयर प्राइस ज्यादा होता है, राइट, देन द स्ट्राइक प्राइस, है ना। तो इसीलिए ST माइनस के पॉजिटिव होगा। अगर ST माइनस के नेगेटिव हो गया तो कॉल एक्सरसाइज नहीं होगा, विच मीन्स अगर ST के से छोटा हो गया तभी तो नेगेटिव हो पाएगा ना। इफ ST इज स्मॉलर देन K तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना, उस टाइम बोलना एक्सरसाइज ही नहीं होगा, 0 का पे ऑफ होगा, इसलिए मैक्स ऑफ 0 ST माइनस के, एंड पुट में उल्टा होता है। तो अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो इसका प्लस होगा, अगर आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो तो इसी का माइनस होगा। सिमिलरली पुट प्लस में इसका प्लस, पुट माइनस में इसका माइनस, राइट राइट। तो ये लिख दिए, एंड प्लस सबका प्रीमियम भी हम लोग साथ साथ में लिख दिए, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पे ऑफ। तो तीनों का पे ऑफ बन गया। अब कंबाइनिंग, ये तीनों साथ में कंबाइन होंगे, है ना।
हम्म इसमें हमने फोर्थ कौन सा इंक्लूड नहीं किया? फोर्थ जो हम लोग 15 डेज वाला ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ऊपर 2 केस निकाल चुके हैं। अच्छा ठीक है, ओके। तो अब हम लोग को वो, क्योंकि 2 अलग अलग दिन पे एक्सपायरी है, तो हम लोग को फोर्थ वाला जो ऑप्शन हम लोग पहले कर चुके हैं उसका 2 केसेस हमेशा रखना है कि अगर 15 डेज वाला एक्सरसाइज हो गया होता तो फिर ये पे ऑफ आएगा, और अगर 15 डेज वाला एक्सरसाइज नहीं हुआ होता तो फिर ये पे ऑफ आएगा। उसको हम लोग कभी कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो केस 1 जहाँ पे वो वाला 15 डेज वाला पे वी हैड गॉट अ पे ऑफ 40 + 20 + S - 800 which is basically S - 740, राइट। इसको छोटा में करके वी कैन राइट S - 740, एंड अगर केस 2 होता विच इज 800 से ज्यादा होता, एक्सरसाइज नहीं हुआ था, तो पे ऑफ इज 40। अग्रीड? अब हम लोग केस 1 मतलब इसको और इनको कंबाइन करेंगे, तो क्या हो रहा है? जो ये नेट प्रीमियम, ये वही है ना जो हमने पहले निकाला था, नेट प्रीमियम 40 अभी केस 2 में? नहीं, नेट प्रीमियम 40 नहीं है, ये सिर्फ उस पुट का प्रीमियम 40 है। नेट प्रीमियम अभी तक हम लोग कहीं भी यूज नहीं किया है। अच्छा ठीक है, कुछ अलग ही हो रहा है। हाँ, तो अब जो ये ग्राफ से हम लोग बनाए, ये सेम चीज यहाँ पे वर्ड से लिखा है। अगर S 725 से कम है, मतलब शेयर प्राइस इज लेस देन 725, तो पे ऑफ क्या होगा? पे ऑफ में शॉर्ट कॉल से खाली प्रीमियम मिलेगा, लॉन्ग कॉल से खाली प्रीमियम दिया जाएगा, और लॉन्ग पुट का प्रीमियम देंगे और उसका पे ऑफ होगा, राइट। तो और यहाँ वाला ये वाला पार्ट इज फर्स्ट वाले का। तो ये हुआ फर्स्ट वाले का। लॉन्ग पुट से -20 प्लस मैक्स ऑफ 0,725 - S, और दोनों कॉल से खाली उनका प्रीमियम एलिमेंट उठाए, राइट। तो ओवरऑल पे ऑफ SS कट गया, पे ऑफ आ गया -15 का। ठीक है, व्हेन शेयर प्राइस इज लेस देन 725, ओवरऑल स्ट्रैटेजी से -15 मिलेगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसके भरोसे मत जाना, ये डायग्राम सिर्फ 3 का है, अभी हम लोग 4 देख रहे हैं। ठीक है, फिर एक सिचुएशन जहां 725 और 800 के बीच में, 725 और 800 के बीच में क्या होगा? वो फर्स्ट वाले का तो एज इट इज रहेगा ही। 725 से 800 के बीच में कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रहा था, तो तीनों बाकी बचा हुआ का प्रीमियम्स आ गया, बचा S - 740। ओके, फिर जब 800 से 850 के बीच में हुआ तब क्या होगा? फर्स्ट वाला एज इट इज, लॉन्ग पुट एक्सरसाइज नहीं होगा, और लॉन्ग कॉल 850 वाला एक्सरसाइज नहीं होगा, तो इन दोनों का सिर्फ प्रीमियम आएगा। सिर्फ शॉर्ट कॉल एक्सरसाइज हो रहा है, तो उसका पूरा पे ऑफ ले लिए। बेसिकली इसमें दे आर डूइंग द सेम थिंग जो अभी हमने ग्राफ में किया था ना। हाँ, एंड ग्राफ में किया, प्लस दे आर आल्सो इंक्लूडिंग द फोर्थ वन। ठीक है, ठीक है, तो न्यूमेरिकली कर दे रहे हैं। फिर S मोर देन 850 जब होगा तब वो 15 डेज वाला हो गया, पहला वाला एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो उसका खाली प्रीमियम। C - C+ दोनों एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो ये C- का पे ऑफ और ये C+ का पे ऑफ, टोटल है S - 790। ठीक है, चारों सिचुएशंस कैसे डिसाइड होंगे? सिचुएशंस हमेशा स्ट्राइक प्राइस से डिसाइड होंगे। जहां पे स्ट्राइक प्राइसेस है वहां पे कुछ बदलेगा, तो इसलिए वहां पे आपका रेंज का लिमिट सेट होगा, इंटरवल सेट होगा। ओके, तो इस केस में जैसे आई शोड यू 4 इंटरवल्स बनेगा, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 इंटरवल में क्या क्या हुआ फॉर ऑल ईच ऑफ द 4 ऑप्शंस।
सिमिलरली अब केस 2 में हम लोग देखेंगे ईच ऑफ द 4 ऑप्शंस में क्या हुआ। फर्स्ट वाला जो 15 डेज वाला था उसमें तो कांस्टेंट होगा, सब में सिर्फ 40 रहेगा और बाकी का हम लोग अकॉर्डिंगली करेंगे। बाकी जो होगा वो केस 1 जैसा सेम डिट्टो होगा, क्योंकि दी ओनली थिंग चेंजिंग बिटवीन केस 1 एंड केस 2 इज कि 15 डे वाले का क्या रिजल्ट आया था। तो यू विल सी कि दिस पार्ट इज द सेम, ये पार्ट सेम है, उसके बाद ये वाला पार्ट सेम है, फिर ये वाला पार्ट सेम एंड देन ये वाला पार्ट पूरा सेम है ना। मेक सेंस, क्योंकि ये 3 के तो पे ऑफ में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना केस 1 केस 2 में। केस 1 केस 2 में दी ओनली थिंग चेंजिंग इज कि 15 डे वाले ऑप्शन के साथ हम लोग का क्या हुआ था। अग्रीड? देख लो एक बार। तो क्या हुआ, इससे हम लोग का पूरा स्ट्रैटेजी का कैलकुलेशन हो गया। नाउ आई एम इरेजिंग ऑल दिस ताकि बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं लगे। ग्राफ रहने दे रहे ये एग्जाम, ये ऐसा कुछ मुझे सिलेबस में तो कहीं नहीं दिखा था चैप्टर्स। नहीं, तो ये एक्चुअली काफी नॉलेज SP5 का है, नंबर 1, एंड नंबर 2 इट इज दिस इज नो नॉलेज। इसमें दी ओनली नॉलेज बीइंग यूज्ड इज कि कॉल और पुट का पे ऑफ क्या होता है। नॉलेज और कुछ यूज हो ही नहीं रहा इसमें। रेस्ट ऑल was there in SP5 also. सॉरी, Derivatives and all was there in हाँ SP5. हाँ पूरा। अच्छा, ये जो पे ऑफ डायग्राम बनाना, स्ट्रैटेजीज का पे ऑफ मैथमेटिकली डिराइव करना, ये सब था है आई मीन। तो अभी तक हम लोग क्या किए, वी हैव सीन 2 केसेस डिपेंडिंग ऑन द 15 डे ऑप्शन, और दोनों केस में वी हैव कैलकुलेटेड द डिफरेंट पे ऑफ्स इन डिफरेंट रेंजेस ऑफ द शेयर प्राइस। ठीक है, कि शेयर प्राइस किस रेंज में है उस हिसाब से पे ऑफ होगा। तो नाउ आई टेल यू कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -15 है पे ऑफ when share price is less than 725 in case 1. Forget about case 2 for once. Case 1 में 725 से कम जब शेयर प्राइस है तो हम लोग का स्ट्रैटेजी हम लोग को एक कांस्टेंट लॉस ऑफ 15 दे रहा है। तो जो हेज फंड है जो इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं 725 से नीचे जाएगा शेयर प्राइस? नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो फ्लैट लॉस बेयर करने को तैयार है। बट एट द सेम टाइम उसको ये भी लग रहा है कि हो सकता है चला जाए, हो सकता है चला जाए, क्योंकि वो अपना लॉस को कैप कर लिया है ना। तो वो कैप कर लिया, कैप करना भी एक तरह का रिस्क अवर्जन माना जा सकता है। अगर उसको लग ही रहा था कि 725 के नीचे नहीं जाएगा तो वो अनलिमिटेड लॉस रखता, जैसे P माइनस में होता है अनलिमिटेड लॉस, या C माइनस में होता है अनलिमिटेड लॉस। पर वो क्या किया, वो लॉस को अपना स्टैग्नेट कर लिया, क्योंकि उसको क्या लगा 725 के और, ये सारा इंक्रीजिंग में आई एम शोइंग, 725 के और नीचे अगर चला गया तो फिर बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए उसको लग रहा है शायद 725 के और नीचे भी जा सकता है, बट चांसेस आर लो। सिमिलरली 800 to 850 का रेंज में वो फ्लैट प्रॉफिट ले रहा है, तो उसको क्या लग रहा है वो रेंज में जाने का चांसेस ज्यादा है, 800 के ऊपर तो जाएगा ही, क्योंकि 850 के बाद क्या है S minus 790 गिवन S इज ग्रेटर देन 850 विच मीन्स अ श्योर शॉर्ट प्रॉफिट। मतलब 60 के बाद से 60 तक कांस्टेंट प्रॉफिट है, 800 to 850 के बीच में कांस्टेंट प्रॉफिट है 60 का, और उसके बाद फिर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जितना शेयर प्राइस बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, राइट? तो इसका मतलब है कि
the manager or the strategist is expecting prices to go up for sure, इसलिए वो अपना पूरा प्रॉफिटेबल रेंज ऊपर रखा है. मेक सेंस? ये सबसे आई एम ट्राइंग टू जगाफाई द इंट्यूशन अंडर इनसाइड यू कि आप रिजल्ट्स को समझो कि क्या हो रहा है, नॉट जस्ट नोइंग कि वो मैथमेटिकली कैसे डिराइव हो रहा है, बट व्हाट आर दे इम्प्लाइंग. देन नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रैटेजीज प्रॉफिटेबिलिटी रेंज. केस 1 में अब हर आंसर में केस 1 केस 2 केस 1 केस 2 होते रहेगा. ओके, केस 1 में प्रॉफिटेबल कब है? प्रॉफिटेबिलिटी बिगिंस 60, ये दोनों 800 के ऊपर तो 100% प्रॉफिटेबल है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. ये वाला रेंज में अब जरूरी नहीं 800 से प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हुआ, हो सकता है पहले से प्रॉफिटेबल हो चुका हो, तो इसके पहले वाला देखते हैं. एंड ये हम लोग को पता है कि अप टू 725 तो लॉस मेकिंग है. तो 725 से 800 के बीच में कहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हुआ है या फिर कहाँ पे ब्रेक इवन हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? इस रेंज में पे ऑफ चल रहा है S-740, तो 725 to 800 में S-740 का पे ऑफ. कहाँ ब्रेक इवन होगा? एकदम कॉमन सेंस. अभी मेरा कुछ कॉमन सेंस चल नहीं रहा है. Okay, I'll put it in simple words. Forget about all this. एक चीज है that is going to give you S-740, ठीक है? And S can be between 725 and 800. So when will you break even? 740. Exactly. It's that simple. Break even हो गया 740 पे. तो 740 के नीचे तक लॉसेस कंटिन्यूड रहेगा. 740 से हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हो जाएगा. एंड देन 800 और उसके ऊपर तो हम लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि वो अनलिमिटेड प्रॉफिटेबल रहेगा. तो it is profitability when it is above 740, breaks even at 740, turns into loss making below 740. Okay? Similarly, case 2. Case 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में 765 माइनस S है, where S is less than 725. तो प्रॉफिटेबल है ये तो फॉर श्योर, है ना? 725 लेस देन इक्वल टू S लेस देन 800, मतलब 725 और 800 के बीच में है और शॉर्ट पे ऑफ है, तो ये भी प्रॉफिटेबल जोन है ना? पक्का प्रॉफिट है 800 तक. 725 के नीचे पक्का प्रॉफिट है, 725 से 800 तक पक्का प्रॉफिट है. अब 800 से 850 के बीच में क्या हो रहा है? 840 माइनस S. 840 माइनस S, वेयर S कैन बी बिटवीन 800 एंड 850. तो लॉस दिख रहा है. 840 क्रॉस होते ही लॉस स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे थर्ड केस में पता चला 800 से 840 तक तो प्रॉफिट हो रहा है, पर 840 टू 850 में लॉस हो जाएगा ना. हाँ, तो ब्रेक इवन कहाँ हुआ? 840 पे ब्रेक इवन हुआ सेकंड वाले केस में, एंड ग्रेटर देन 850 में शॉर्ट लॉस है. कैन वी से 840 पे ब्रेक इवन हुआ, 840 के नीचे प्योरली प्रॉफिटेबल और 850 के ऊपर 840 के ऊपर लॉस मेकिंग. अब लॉस मेकिंग भी कैसा होगा ये हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं, कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है. अब हम लोग देखेंगे कुछ केसेस में यू कैन सी कि जो प्रॉफिट या जो लॉस है वो फिक्स्ड है, और कुछ केसेस में इट इज डिपेंडेंट ऑन द शेयर प्राइस, है ना? जैसे इस केस में S-790 है, जितना शेयर प्राइस बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा. S-1000 चला गया तो प्रॉफिट हो जाएगा 210, है ना? तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल गया, प्रॉफिटेबल रीजन्स और लॉस मेकिंग रीजन्स निकल गया, है ना?
अब ये दोनों को जब हम लोग कंबाइन करें, हम लोग देखें एक का 740 पे ब्रेक इवन हो रहा है, उसके नीचे लॉस है, 740 पे ब्रेक इवन और फिर प्रॉफिट है। इस केस में 840 पे ब्रेक इवन हो रहा है। 840 के पहले लॉस है, नहीं सॉरी 840 के पहले प्रॉफिट है, 840 पे ब्रेक इवन और फिर लॉस है, राइट। 740 से 840 के बीच में दोनों केसेस में प्रॉफिट है ना। तो यही इन लोग यहाँ लिखे, irrespective of which case strategy gives profits within 740 to 840. Beyond this range, it may give limited losses or unlimited gains. क्यों? जैसी 850, अच्छा रुको, 840 जब होगा, हाँ एक बार सेकंड केस का बात करें, 840 होती या 840 छोड़ो 841 होती, 1 रुपी लॉस, फिर 2 रुपी लॉस, 3 रुपी लॉस, करते करते 10 रुपी लॉस तक जाएगा 850 पे। तो ग्राफ कैसा बनेगा, 840 टू 850, यहाँ पे लॉस बनना शुरू होगा और ये लॉस बढ़ते जाएगा है ना। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, लॉस बढ़ रहा है, राइट। तो ऐसा बनेगा इंक्रीजिंग लॉस, दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ इट। तो इंक्रीजिंग लॉस, दिस इज 0 एंड दिस इज -10। 850 पे जाके क्या हो रहा है, 10 पे लॉस कैप हो जा रहा है, तो उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, नो लॉन्गर फॉलिंग, Right. हाँ। So because we had 850. 850 के ऊपर शेयर प्राइस जाने से हम लोग का पे ऑफ फिक्स हो जा रहा है -10, ठीक है ना। ये सब चीज ग्राफ बनाने में भी हेल्प करेगा हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, फिर है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस इन बोथ सिचुएशंस। केस 1 में पहले मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं। पता है हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, वो हम लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कई बार। और मैक्सिमम लॉस कितने हैं, लॉस मेकिंग सिचुएशन है यहाँ पे, या तो -15 हो सकता है और S -740 हो सकता है, और वो भी अप टू 740। तो 725 के नीचे तो -15 का लॉस है, 725 से 740 के बीच में भी एक लॉस मेकिंग रीजन है। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 725 - 740 विच इज 15। तो मैक्सिमम लॉस पूरे स्ट्रैटेजी में 15 का हुआ, है ना। एंड 1100 का लॉट साइज है तो 16,500। अब इन लोग को फाइनली जाके लॉट साइज ज्यादा है, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग प्रॉपर पूरे स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट लॉस, मतलब बेसिकली पोर्टफोलियो लेवल। यस, ठीक है। इवन इफ यू कैलकुलेट इट एज 15 और फिर लास्ट में आप लॉट साइज के हिसाब से सारा अमाउंट कर दो, इवन दैट इज फाइन, बट 15 इज व्हाट द रियल नॉलेज रिक्वायर्ड इज। ठीक है ना, ये समझ आया। केस 2 का आप ट्राई करो बिना देखे बताने का, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस। लो 2-3 मिनट, नंबर सारा आपके सामने है, आई जस्ट डू सम इरेजिंग ताकि क्लियर दिखे। केस 2 का बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और मैक्सिमम लॉस कितना होगा और कब होगा। मैक्सिमम लॉस तो विल बी वही जो भी डिस्कस्ड कि 850 पे -10 पे हमारा कैप हो जाएगा। तो 10 to our 1100 becomes our maximum loss. गुड, समथिंग ये गुड ही तो अभी डिस्कस है। प्रॉफिट आई डोंट नो, 840 के नीचे ही देखना है। स्टार्ट करो फर्स्ट वाला से, 765 माइनस S, जहाँ पे S इज लेस देन 725, है ना। हमारा 765 कहाँ से है ये, केस 2 का पहला पे ऑफ देखो ना। ठीक है ठीक है।
तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो पाएगा? 765. कैसे? 725 से छोटा होना चाहिए शेयर प्राइस. अच्छा, मतलब यू आर सेइंग कि हाँ 0 तक जा सकता है शेयर प्राइस. ठीक है, तो 765 हुआ यहाँ पे फॉर पहला सिचुएशन में. नेक्स्ट सिचुएशन, जब शेयर प्राइस 725 और 800 के बीच में, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? जब 725 और 800 के बीच में, ये वाला केस में. इस केस में 765 which we were discussing. नहीं, वो तो इस केस में हुआ ना. इस केस में तो 40 पे लॉक हो गया प्रॉफिट. मेरे को आपका शायद वो नहीं दिख रहा, कर्सर नहीं दिख रहा. अच्छा, केस 2 का पहला लाइन में वी हैव एस्टैब्लिश 765 मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, जो भी हमने ऊपर वाले में डिस्कस किया, अभी जस्ट जो डिस्कस किया हम लोग, करेक्ट, कि शेयर प्राइस 725 के नीचे 0 तक जा सकता है. 0 के नीचे तो जाएगा नहीं, तो 765 तक का हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं. 725 से 800 विच इज द नेक्स्ट लाइन, उस रेंज में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? उस रेंज में तो पे ऑफ ही 40 है कांस्टेंट, तो 40 के ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता. जो हमारा सेकंड पे ऑफ है. हाँ, सेकंड रेंज है, उसका पे ऑफ 40 है. ठीक है. हाँ, तो दैट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम मैक्सिमम प्रॉफिट ऑप्शंस. फिर थर्ड वाले में 800 to 840 was only the profitable region. 840 के बाद तो लॉसेस ही होना था. तो 800 से 840 के बीच में, और पे ऑफ है 840 माइनस एस, मतलब एस कितना छोटा हो सकता है? एस 800 तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता इस पे ऑफ के लिए. तो विच गिव्स अस अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 40 अगेन. तो ओवरऑल केस 2 का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ? 765. हाँ, जो हमने फर्स्ट में किया था 765. हाँ, इंटू 1100. मतलब बेसिकली केस 2 में हमने जितने भी 4 केसेस देखे, हमने सब में से देखा, एंड द फर्स्ट मैक्सिमम वन वाज इन 765. एग्जैक्टली. ठीक है. ठीक है, तो हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है. क्लियर नाउ? ओके. अब उसके बाद है नेक्स्ट इज द इनिशियल कैपिटल और मार्जिन रिक्वायरमेंट. वो हम लोग कैलकुलेट करते थे ऑलरेडी, प्लस माइनस करके. फिर है व्यूज. व्यूज हम लोग देख सकते हैं कि किस रेंज में प्रॉफिटेबल है. मतलब 740 to 840 के बीच में तो रहने का चांसेस बहुत हाई है, इसीलिए वो ऑलवेज प्रॉफिट मेकिंग है. मतलब दैट इज आवर मोस्ट लाइकली सिनेरियो, वी कैन से मोस्ट लाइकली सिनेरियो. और क्या लिखे ना, स्टे क्लोज टू द करंट प्राइस विच इज 790. तो 740 to 840 के रेंज में, तो इसीलिए करंट प्राइस के आसपास ही रहने वाला स्ट्रैटेजिस्ट को लगता है. He has no directional view because he is neutral. Since he gets profit even if the share price rises slightly up to upper break-even point and अगर थोड़ा fall भी होता है. एक होता है जैसे call options होते हैं. If you buy a call, then you have a directional view कि आपको पता है कि वो ऊपर ही जाने वाला है. बट अगर आप यहाँ पे भी जैसे डायग्राम देखो तो कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं है. वो थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, बट चांसेस ज्यादा ऊपर जाने का. ठीक है. एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो 15 डेज का खाली एक पुट लिया है, तो उसका मतलब है कि वो डिविडेंड्स पे आई कर रहा है. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेकिंग द पे ऑफ डायग्राम. पे ऑफ डायग्राम
कैसे बनेगा? अभी हम लोग ऊपर जितना मेहनत किया है इसको सिर्फ ड्रॉ करना है हम लोग को, उसको सिर्फ ड्रॉ करना है। किस रेंज में बोला है? पे ऑफ डायग्राम बोला है 600 to 1000 के रेंज में बनाना है। 600 to 1000 के रेंज में पे ऑफ डायग्राम बनाना है। तो ये रहा 600 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 तक दिखा रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। चेंजेस कहाँ कहाँ पे होंगे? चेंजेस होंगे ये सारे स्पेसेस पे, है ना? ये सारे स्पेसेस पे चेंजेस होंगे। तो हम लोग, और व्हाट हैव दे डन? दे हैव प्लॉटेड डिफरेंट पॉइंट्स और उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है। और फ्यूचर सिनेरियो है कि S is less than 800 end of 15 days, which means कि सिर्फ एक ही केस प्लॉट करना है, and that is case 1। सिर्फ केस 1 को बेसिकली ये जो भी सारे वैल्यूज निकाले हैं ना हम लोग, इनको हम लोग को एक ग्राफ पे लाना है खाली, दैट्स इट। यू कैन सी लेस देन 725 पे -15 कांस्टेंट लॉस। टिल 725 यू कैन सी -15 का कांस्टेंट लॉस है। फिर उसके बाद 725 to 800 के बीच में S - 740, मतलब लीनियरली इंक्रीजिंग प्रॉफिट, लीनियरली इंक्रीजिंग प्रॉफिट टिल 800। 800 पे क्या हो रहा है? 800 to 850 कांस्टेंट प्रॉफिट ऑफ 60। तो 800 पे प्रॉफिट रुक जा रहा है और 60 का कांस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है अप टू 850। और फिर फाइनली 850 के ऊपर जाएगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, इसीलिए अनलिमिटेड प्रॉफिट। And what are these points? ये 66, 121. These points are nothing but ऐसे estimates है। देखो 725 पे, 800 पे, 850 पे, ये तीन पे तो हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, है ना? ये सब पॉइंट्स है आपका टोटल पे, फाइनल पे ऑफ। बस वही है ये। दीज आर द इंटर आपका एक्स वैल्यू पहले एंड वाई वैल्यू बाद में। तो पहले शेयर प्राइस है एंड उस शेयर प्राइस पे क्या पे ऑफ होगा इन थाउजेंड्स। बट ये these graphs and all are not something ना जो अभी हम ऑनलाइन पोर्टल में बना सकते हैं। नहीं, ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं बना सकते। मतलब इसमें एग्जाम ऑफलाइन था मेरा। हाँ, मतलब कि we get the graph and we have to interpret कि ग्राफ में क्या हो। हाँ, वो हो सकता है लेकिन आप बना नहीं सकते। ठीक है, क्लियर? बट इसमें if I want to practice these derivative questions, so I should go back to SP5 or CM2 Yes. or where? SP5। ठीक है, SP5 derivative chapters जो इनिशियली में थे। उनका रिवीजन नोट्स में। अच्छा, we have revision notes because I don't have मेरे SP5 के। SP7 का नहीं है, SP5। SP5 के we have revision हाँ. notes if I can just have the हाँ, PDF. I will share। आप भेज दोगे एक बार? So basically मैं सिर्फ SP5 में जाके सिर्फ डेरिवेटिव पार्ट ऑफ इट जो बिल्कुल ही न्यू लग रहा है। बुकलेट ओनली विद यू जिसमें डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, you can go through that। कहाँ गया SP5? because मैंने CM2 वीडियो स्टार्ट की थी but that was like 1.5 hour each, so it was like taking 7-8 hours for watching 4-5-6 videos, तो वो तो बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वो तो I did not watch। ठीक है, कोई बात नहीं। इफ यू स्टार्ट गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग, देखो आप क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ लर्निंग से यू विल स्टार्ट गेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेरिवेटिव्स। ठीक है, मतलब इट इज मोर ऑफ जस्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिकली इट इज जस्ट व्हाट वी डिड इन CM2। हाँ, ठीक है। इन SP5 में आई गेट एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस ऑन डेरिवेटिव्स। हाँ, तो उसमें आपको ये ग्राफ्स रिलेटेड और ये सब पे ऑफ्स एंड ऑल का क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, आप भेज दोगे एक बार?
I have already sent. देखो लिंक भेजा है. ठीक है. ठीक है. So you can practice those and come back to me if you have any doubts. Next class में let's look at the second question. ठीक है. सेम पेपर ना? हाँ, इसी पेपर का second question. ठीक है. We have class tomorrow. I'll let you know tomorrow. ठीक है. Okay. Cool. Okay. You. Bye. Good night. Bye. Good night.